رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صبرنا عند الموت بلا اله الا الله اللهم اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے یہ بات کیا تھا کہ کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو بیچا جاتا ہے اور یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا تھا؟ مصر کے بادشاہ، یعنی جو مصر کا جو عزیز تھا، جو بادشاہ تھا، وہ خریدا تھا، رائٹ؟ اور چلیے ہم یہاں پر ڈیٹیل کرتے ہیں۔ کیا تھا کہ مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ ویٹ، یہ کس کے بارے کہا جا رہا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا اور تھوڑا کرتے ہیں ایکسپلین یہاں پر کہ مصر میں جب اسے ایک غلام کے طور پر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا گیا، تو جب انہیں محل لے جایا گیا، مطلب اس بادشاہ جو محل میں ان کو جب لے جایا گیا تو ان بادشاہ کے بیوی نے، بادشاہ نے یعنی عزیز نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی کہ جس غلام کو آج میں نے خرید لایا ہے اس سے تم عزت دو اور احترام دو، مطلب اسے بہت خوش رکھو، ایسا فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں کچھ فائدہ دے گا یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ ہاں، تو یہ بات ایک غلام کے لیے یہ کیوں باتیں کہی جا رہی تھی؟ ہم نے یہ ایکسپلین کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام میں جو کوالٹیز دیکھے ہو، جو کوالٹیز یوسف علیہ السلام میں اس نے دیکھا، اس سے پہلے وہ انہوں نے کسی غلام میں نہیں دیکھا۔ اوبویسلی ہم نے اس میں بات کیا تھا کہ کیا پہلی بار اس کو غلام ملا ہو؟ نہیں، اس سے پہلے بہت سارے غلام ملے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر بازار لگتا تھا۔ تو اس کا مطلب یوسف علیہ السلام نے کچھ بیسٹ پرفارم کیا، مطلب بیسٹ اپنے آپ ایکسپریس کیا اس کے سامنے، جو وہ سمجھ گیا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اس عزیز کو بھی داد دینا پڑے، اس کنگ کو، کہ انہوں نے اس کو پہچان لیا، اس کے جو کیریکٹرز تھے ان کو وہ لوگ ان کو پہچان لیا، لیکن وہ جو ان لوگوں پہلی بار جو تجارتی تھے ٹریڈرز، ان لوگوں نے نہیں پہچانا۔ سو اب آگے کیا ہے کہ یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں، یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ کیا کہہ رہا اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہاں، تو کیا مطلب اس بادشاہ نے کیا کہا کہ ایسا کہ ہم یہ فیوچر میں کچھ ہمیں فائدہ دے گا یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ تو بہت انکریڈیبل بات ہے کہ ایک غلام کے بارے یہ چیز کہی جا رہی ہے، اس کے کیریکٹر کو دیکھ کر، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے کہ انہوں نے اس کے کیریکٹر کیا دیکھا کہ وہ اتنا بات کر رہا ہے، مطلب وہ ایک غلام کو بیٹا بنانے کے لیے ریڈی ہے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بہترین بیہیویئر سکھایا تھا، بار بار جو ہم کہہ رہے ہیں، اس بیہیویئر کو وہ پہچان لیا، رائٹ؟ تو اب کیا کر رہا کہ یوں اسی طریقے سے اللہ نے مصر میں یوسف علیہ السلام کے قدم کو جما دیا۔ سبحان اللہ، مطلب ایک چھوٹے سے شہر سے تھے، کنون جو شہر تھا، مطلب گاؤں تھا، اس سے یوسف علیہ السلام کو
निकाल कर मिस्र, जो तभी का डेवलप शहर, डेवलप्ड टाउन माना जाता था, वहाँ पर शिफ्ट कर दिए, वहाँ पर उनके कदम को जमा दिया। और सुभान अल्लाह, ये कदम किस तरीके से जमाया अल्लाह, किसी को गुमान नहीं था कि पहले उनके भाइयों ने उन्हें किडनैप किया, राइट, और किडनैप करके उनको जख्मी करके एक वेल में, एक गड्ढे में, क्या बोलते, एक कुएं में फेंक दिया। फिर उन्हें एक तिजारती लोग, जो ट्रेडर्स थे, वो लोग लेकर चल गए। वो लोग भी कुछ मिसबिहेव किए, अब वो लोग मिसबिहेव बेच दिया वो लोगों ने। फिर आफ्टर ऑल अल्लाह ने उसे अच्छे घर में, यस, ये तो किंग का घर है ना, और ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा होगा, राइट। और मेन किंग के घर में वो नौकर नहीं रहना, है ना, क्यों, रीजन वही ना, यहाँ पर देखिए, उससे इज्जत वो एहतराम दो। तो ऑब्वियसली बात है कि कोई अगर कोई गुलाम को, मतलब सो कॉल्ड अभी वो गुलाम है, लेकिन वो बहुत इज्जत व एहतराम के लाइफ जिएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर और हम लोग आगे ये भी देखेंगे कि किंग जो था, वो जितने भी वो उसके दरबार में जितने मीटिंग्स होते थे ना, तो वो उसके साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम में रहते थे, तो उनको वहाँ पर इज्जत मिला। तो यहाँ पर बात क्या देखिए, उनके पिछले में, मतलब उनके पिछले लाइफ में कुछ सालों पहले देखिए उन पर कितना जुल्म हो रहा था। अब धीरे धीरे उनके लाइफ में अच्छा पल आने जा रहा है। और अल्लाह क्या सिखा रहे, हम उसे ख्वाब की ताबीर का कुछ इल्म सिखा दे। मतलब अल्लाह का प्लान मिस्र में लाने का क्या है कि अल्लाह यहाँ पर, दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर हिम, फॉर इंटरप्रेटिंग हिज ड्रीम। मतलब जो मिस्र, जो देश है अभी, जो शहर है अभी, टाउन है, वहाँ पर अल्लाह उन्हें क्या सिखाएंगे, तावील अहादीस, मतलब जो ख्वाब की ताबीर है वो सिखाएंगे। और हमने पहले बहुत एक्सप्लेन कर दिया कि सिर्फ यहाँ पर तावील अहादीस का मतलब ये नहीं है कि ख्वाबों की ताबीर, इसका मतलब बहुत सारा है। मतलब ये भी कि उनको किसी भी स्पीच को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, उसके बारे में अल्लाह उन्हें सिखाएंगे, और कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करें, और कि किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से सामना करें, ये सब भी अल्लाह उनको सब कुछ सिखाने वाले हैं। अब अरे एक चीज़ आप लोगों को याद आ रहा हो, जब पहले हमने शुरू किया था, तब याकूब अलैहिस्सलाम ने ये बात कही कि अल्लाह तुम्हें वयतिम्मु निअमतहु अलैका व अला आलि याकूब कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्ल इब्राहीम व इसहाक़ इन रब्बी, इसके बाद वाले आयत आई थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था कि तुम्हें अल्लाह तावील अहादीस बात से सिखाएगा। सुभान अल्लाह, वही चीज़ यहाँ पर अल्लाह क्या रहे। इसका मतलब उनको, वो अल्लाह के नबी थे, उनको ये पता लग गया था कि मेरा बेटा जो ये सपना, ये जो ड्रीम देखा, ये आम ड्रीम नहीं है, और ये इस तरीके से सच होने जा रहा है, राइट। तो उसके बाद अल्लाह क्या कह रहे हैं कि अल्लाह अपने इरादे पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग बेइल्म होते हैं। यानी अल्लाह अपने इरादे पर गालिब है कि अल्लाह ने जो इरादा किया, अल्लाह ने जो प्लान किया है, वो सब पर गालिब। मतलब अल्लाह का प्लान वो होकर रहेगा, नो कैन, कोई भी उसे टाल नहीं सकता। यानी अगर मेरे साथ कुछ होना है और अल्लाह ने वो तकदीर में लिख दिया है हमारे, तो वो कर रहे हैं, हम लोग उसको टाल नहीं सकते। सेम अल्लाह ने यहाँ पर जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के तकदीर में जितनी भी डिफ़िकल्टीज लिख दिए हैं, और उसके बाद जो, और एक बार में, ये मत समझिए कि अभी महल में
आ गए हैं तो अभी डिफ़िकल्टीज ख़त्म हो गया। सबसे खतरनाक डिफ़िकल्टी अभी पड़ने वाला है उनके लाइफ में। यस, अभी सबसे बड़ा टेस्ट अभी आने वाला है, और वो खुद अपने मुंह से ये कहेंगे कि यस दिस इज़ माई खतरनाक टेस्ट। ठीक है, ये अभी बोलने वाले हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, राइट। तो अल्लाह ने यहाँ पर अल्लाह ने ये सिर्फ देखिए ये बात अल्लाह ने क्या कहा कि अल्लाह अपने इरादे पर क्या है, गालिब है। ये हर ह्यूमन काइंड है। अल्लाह ने जितने भी ह्यूमन बीइंग को बनाया है और सबका एक तकदीर, ख़ास तकदीर बनाया है, राइट। इसलिए हम मुसलमान कहते हैं कि हम तकदीर पर ईमान रखते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने वो तकदीर लिख दिया, वो होकर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ की बात कर रहे थे। तो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के लाइफ में जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, राइट, तो वो एक उनके तकदीर का पार्ट है। और एंड यूसुफ अलैहिस्सलाम ये कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि अल्लाह मेरी तकदीर इतना बुरा क्यों, मेरा नसीब इतना बुरा क्यों, नहीं कह सकते, क्योंकि ये ईमान का पार्ट है। यस, आप अल्लाह से हेल्प कीजिए कि अल्लाह मेरा तकदीर में ऐसा है, तो अल्लाह हमको प्लीज़ हेल्प मी कि हम इसको सह पाए, अपने डिफ़िकल्टीज को सह पाए। हमारे यानी देखिए हम बार बार यही बात करें, फिर से ये बात हम दोहराना चाहेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जितना भी डिफ़िकल्टीज़ है, ये सब हम उम्मतों को लिए अल्लाह ने। और जब यूसुफ और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत डिफ़िकल्टीज़ के जब ईयर थे, मतलब डिफ़िकल्टी जब उनको सहना पड़ा था, तब ये सूरा हुआ था। इससे क्या हुआ कि अल्लाह ने अल्लाह को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंफर्ट देना था कि ए नबी, आपके साथ से इतना प्रॉब्लम नहीं है। आप जो अभी प्रॉब्लम झेल रहे हैं, ये सिर्फ आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है, और भी जो नबी आए होंगे सारे उनके साथ जो प्रॉब्लम्स थे वो आप देखिए, उनको कितना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जिससे क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा कंफर्ट मिला, उनको थोड़ा सुकून मिला ये बात सुनकर। तो ये सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो नहीं है, ये सारे हुकूमतों के ही है। तो ये हम सब के लिए ये इसमें गाइडेंस है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग इंशाअल्लाह इसको देखेंगे, और अब हम ट्राई करेंगे अब कि रमज़ान में हम इंशाअल्लाह हम फ्रीक्वेंट हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू या रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से अमल करने का तौफीक अता फरमाए।